let's try to understand, right, more in detail the subscription adjustments. ठीक है? I have taken some questions, right? They are universal questions. So first, subscription received by the health club during the year 2013 were as under. They have given you details of the subscription. You have received subscription during the year 2013. So your current year is 2013. 2013 is your current year. 2012, during this year, in 13, you have received total 1,01,000 subscription. You have received 1,01,000 का subscription. जो received है, right? जो received है, right? वो income नहीं होता है. जो received है वो income नहीं होता है. उसमें से जो current year का है वो income होता है. Like भले ही 2013 में you have received 1,01,000 put together, but that is for the 3 different years. First, 3,000 for previous year. 2012 is the previous year. 2013 is the current year. 2014 is the next year. Then, so total 1,01,000 है, उसमें से previous year का और next year का छोड़ के जो 96,000 है, that is your income. Income of 2013. This is income of 2013. 3,000 2012 की income थी. 2,000 2014 की income होगी. This was already income of 2012. तब आपने उसको income में ऐड करके asset में ऐड किया था being receivable. 2000 को 2014 के income में ऐड करेंगे. So ये income हो चुकी है. Don't treat income again. ये next year की income है. Don't take as a income of the current year. So just 96,000 is your income. So out of 1,01,000, 96,000 is a part of your income. Then आगे क्या लिखा है? आगे उन्होंने लिखा है subscription outstanding as on 31st December 2012. Previous year में, previous year के end में, your current year is, try to understand, your current year is 2013. Beginning of current year or end of the previous year, 5,000 was outstanding. As on लिखा है. So on this date, total 5,000 rupees subscription was outstanding receivable. Of that you have received 3,000. 5,000 में से you received 3,000. Means 2,000 is still pending. Opening का 5,000 receivable था, उसमें से 3,000 received हो गया. So अभी भी कितना बाकी है? 2,000. As on 5,000 था beginning of the year. At the end of the year उसमें से 2,000 बाकी है. And आगे क्या लिखा है? Subscription outstanding as on 2013 is 12,000. Means according to them, at this date, at the end, total 12,000 is receivable. Total 12,000 is as on means total. As on means total. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. ठीक है? As on means total. So next, ध्यान देना, as on means total. So इस तारीख पे total 5,000 receivable था, इस तारीख पे total 12,000 receivable है. So can I say इस 12,000 में से पहले का ही 2,000 है, तो करंट ईयर का कितना हो गया? करंट ईयर का 10,000. So 12,000 का बाइफर्केशन क्या मिल गया? 12,000 जो आज एंड में आउटस्टैंडिंग है, उसमें से 2,000 पहले का ही है और इस ईयर का 10,000 है. So outstanding for current year is 10,000. Outstanding for the year is different. Outstanding at the end is different. क्या बोल रहा हूं? ध्यान देना. English wording very important. Outstanding as on 31st March या 31st December है यहाँ पे. 31st December 13 is 12,000. And outstanding for 2013 is 10,000. As on means
एज ऑन मीन्स क्यूमुलेटिव, एज ऑन मीन्स क्यूमुलेटिव, टोटल पुट टुगेदर। सो ये जो एज ऑन लिखा है ना उन्होंने, मतलब इस तारीख पे 31 दिसंबर 12 तक का आउटस्टैंडिंग 5,000 था, 31 दिसंबर 13 तक टोटल 12,000 है। सो 12,000 का बाइफर्केशन क्या है, पहले का 2,000, इस ईयर का 10,000। तो हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर इज 10,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस इन 2012 फॉर 2013 इज 5,000। इस ईयर का 2013 का सब्सक्रिप्शन पहले कितना मिला था, पहले ईयर में मिला था 5,000। सो व्हाट इज योर इनकम? कोई मुझे बोलेगा टाइप करो इनकम, व्हाट यू थिंक? आई वांट आंसर फ्रॉम यू, आई विल ऑब्वियसली टीच यू, डोंट वरी, बट आपको क्या लगता है व्हाट इज इनकम? व्हाट यू थिंक इज योर इनकम? करो ट्राई। ओके, देयर आर सम आंसर्स, ओके, लेट मी थिंक। So there are some answers. Some are saying 1,11,000. Some are saying 1,01,000. Someone is saying 1,08,000. कोई 1,13,000 बोल रहा है। चलो अब मैं आपको समझाता हूं, लिख लेना। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसका आंसर लिखो एवरीवन। क्वेश्चन, मैंने कुछ भी क्वेश्चन उठाया, आप सब्सक्रिप्शन एडजस्ट में सिखा रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन में कर सकते हो, ध्यान देना, ठीक है। एग्जाम्पल था ये मेरा, ठीक है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। इफ आई प्रिपेयर राइट, दिस इज माई ओपनिंग बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 2012 की। दिस बैलेंस शीट बिलोंग्स टू 31 दिसंबर 2012, ठीक है। मैंने जानबूझ के निकाला है बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या पोजीशन है। देन मैंने एक रिसीविंग पेमेंट अकाउंट निकाला है, रिलेवेंट, नॉट एवरीथिंग, रिसीविंग पेमेंट। 31 दिसंबर 2012 जो मेरा बैलेंस शीट है, वहां पे उस दिन पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 5,000। ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना था, 5,000। यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन था, लेट मी चेक कितना एडवांस सब्सक्रिप्शन था। बिगिनिंग में कितना एडवांस सब्सक्रिप्शन था, नीचे लिखा है 5,000। रिसेबल 5,000 था, एडवांस 5,000 था। दिस एडवांस सब्सक्रिप्शन वाज फॉर 2013, नेक्स्ट ईयर के लिए 13 के लिए था। दिस रिसीविंग पेमेंट इज फ्रॉम 1 जनवरी 13 टू 31 दिसंबर 13 का है। रिसीट साइड पे 2 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2012 प्रीवियस ईयर, 2013 current year, 2014 next year, PY, CY and next year NY. You have received 3,000 for the previous year, you have received 96,000 for the previous year and 96,000 for the current year and 2,000 for the next year. Total receipt are 1,01,000. 1,01,000. You have received 1,01,000 in the current year. जो मिला वो इनकम नहीं, उसमें से जो इस ईयर का है वो इनकम है। क्या बोला, ध्यान देना, whatever you received is not your income. उसमें से जो करंट ईयर का इनकम है, सो भले ही आपको 1,01,000 आया है, लक्ष्मी को नहीं बोला, ले लो, लेने में दिक्कत नहीं है, बट उसको इनकम मत बोलो। ये जो 2012 है,
दिस वॉज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। ये जो 2014 का मिला है, नेक्स्ट ईयर का मिला है, दिस इज इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है, राइट, इस ईयर की नहीं है। दिस इज रिसीव्ड एडवांस। एंड 2013 का जो है, जो हमारा करंट ईयर है, दिस इज इनकम ऑफ द करंट ईयर, इनकम ऑफ करंट ईयर। ठीक है, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है, एडजस्टमेंट में लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन लिखा है, फॉर द ईयर नहीं लिखा है, एज ऑन। एज ऑन मतलब क्यूमुलेटिव, आज तक का, मतलब इसमें इस ईयर का भी रहता है, पहले का भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है। एज ऑन 31st December 13 इज रुपीज 12,000। सो जो एज ऑन है, इसका बाइफर्केशन मुझे ढूंढना है। 12,000 में से प्री, राइट, करंट ईयर का कितना है और प्रीवियस ईयर का कितना है। बिकॉज आउटस्टैंडिंग किसी भी तारीख पे आउटस्टैंडिंग देखते हो तो थोड़ा इस साल का होगा, थोड़ा पहले के होगा। फ्यूचर का आउटस्टैंडिंग कभी नहीं होता है, फ्यूचर का रिसीव एडवांस होता है। सो इफ यू अंडरस्टैंड, टोटल 5,000 रिसीवेबल था, टोटल कितना रिसीवेबल था 5,000, उसमें से 3,000 रिसीव्ड है। सो अभी भी 2,000 आउटस्टैंडिंग है। सो ये आउटस्टैंडिंग एंड में आएगा। सो ये जो एज ऑन लिखा है ना, एज ऑन, इसमें वो 2,000 छुपा है। सो आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर कितना है, दिस इज 12,000 में से आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर इज 2,000, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर इज 10,000। So your income is, income can be received in the previous year, yes, 5,000. Income can be received in the previous year, ठीक है? Income can be received in the previous year, income can be received in the current year, income can be received in the next year. Your income is 5,000 already received, plus received in the current year 96,000, 5 plus 96, 1 lakh, 1,01,000, plus to be received in the next year as a outstanding for the year, it is 10,000. 1,11,000 is your income, 1,11,000 is your income. लिखो, अब इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे कैसे। हमें क्या ढूंढना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस। लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस, जस्ट एक्सट्रैक्ट, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। income and expenditure, income and expenditure account for 31st March 13, then closing balance sheet, एक टी फॉर्म में 2-3 लाइन के, ज्यादा नहीं चाहिए। बैलेंस शीट एज ऑन, क्लोजिंग बैलेंस शीट 31st December 13, ये सॉरी इसको दिसंबर करो, मैंने मार्च लिया है। 31st December 13 लिखो। सो लिख लेना, इनकम साइड पे, क्रेडिट साइड पे सब्सक्रिप्शन इधर डेबिट है, रिसीट साइड पे, सेकंडरी पे क्रेडिट पे आएगा, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इनकम साइड पे। जब यू रिसीव्ड, इट इज ऑन रिसीट साइड, डेबिट साइड। अब हम उसको इनकम में ट्रांसफर करें, क्रेडिट साइड पे, सेकंड इफेक्ट कंप्लीट करें क्रेडिट साइड पे, ड्यूरिंग ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज हाउ मच, 1,01,000। टोटल रिसीव्ड इज 1,01,000। उसमें से जो इस ईयर का नहीं, वो इनकम नहीं है, तो हटाओ, लेस रिसीव्ड फॉर
previous year for next year. Out of 1,01,000, 3,000 is of the previous year, वो minus होगा. 5,000 is of the next year, sorry 2,000 is of the next year, वो भी minus होगा. जो इस ईयर का नहीं वो इनकम नहीं. Therefore received for the year is 96,000. So इनकम में रखा कितना? 1,01,000 को इनकम में नहीं रखा, उसमें से 96,000 जो करंट ईयर का है वही मैंने इनकम में रखा. Add. So income 96,000 received in the year. Income which already received in the previous year. जब previous year में received होगी तब आपने उसको liability में लिखा होगा, है क्या? Yes. Advance subscription for 13. जब 2013 ईयर आएगा तब हम उसको इनकम में लेके जाने वाले, जो अब 2013 का कर रहे हैं. तो यहाँ पे लिखो, राइट, सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड, पहले ही मिल चुका था. सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड 5,000. 1,11,000 ये आ गया 1,01,000. सो आज तक आपको टोटल 1,01,000 मिला है. कितना मिला है? 1,01,000. इस ईयर के लिए 2013 के लिए टिल डेट एट द एंड ऑफ 2013 यू रिसीव्ड 1,01,000. उसमें से 5,000 पहले, 96,000 इस ईयर में. तो अब मुझे बोलो ऐसे कुछ है जो बाद में मिलेगा? सर यहाँ पे तो 12,000 लिखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000 लिखा है. अरे देयर इज अ डिफरेंस, एज ऑन अलग एंड फॉर ईयर. सो भले ही 12,000 आउटस्टैंडिंग है, डोंट ऐड 12,000 इनटू इनकम. उसमें से जो करंट ईयर का है वो 12,000 में पहले का 2,000 छुपा है, एज ऑन लिखा है, फॉर इज अलग. 12,000 इज ए क्यूमुलेटिव आउटस्टैंडिंग, उसमें से 2,000 प्रीवियस ईयर का है, इस ईयर का 10,000, तो हम इस ईयर का ऐड करेंगे. सो लिखो एड आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर. क्या वर्डिंग है? आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर. फॉर 2013 करंट ईयर 10,000. 12,000 नहीं ऐड करने. सो 1,11,000 इज योर इनकम. ठीक है. अब क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे दिखेगी? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2012 का टोटल कितना था? 5,000 था. उसमें से यू रिसीव्ड 3,000, तो वो कितना बाकी है? 2,000. 2013 का आउटस्टैंडिंग कितना है? 10,000. ऐसे टोटल क्यूमुलेटिव आउटस्टैंडिंग कितना है? 12,000. इसलिए बोला गया है कि 31 दिसंबर 13 को एज ऑन 31 दिसंबर 13 को 12,000 आउटस्टैंडिंग है. उसका बाइफर्केशन 2,000 पहले का, 10,000 इस ईयर का. ठीक है. एंड ये जो आपने माइनस किया है, देखो 3,000 जो यहाँ पे माइनस किया, मैंने यहाँ पे माइनस दिखाया, ये असेट से माइनस हो गया. 5,000 से 3,000 माइनस हो गया. ये लायबिलिटी में जाके बैठेगा. एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन 2014 का, ये कहा किस में गया? लायबिलिटी में 2,000. इसको आप क्या बोलते हो? रिसीव्ड इन एडवांस. ये 2014 के इनकम में जाके बैठेगा. कौन से इनकम में जाके बैठेगा? 2014 के आगे. देन सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड, ये ओपनिंग लायबिलिटी में से, ये जो ओपनिंग लायबिलिटी थी यहां से इनकम में आके बैठा है 5,000, ये ओपनिंग लायबिलिटीज में आके बैठा है. एंड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर एड इन इनकम, एड इन एसेट, अपने एसेट में ऐड किया है वो. सो इनकम इज 1,11,000. सो देयर इज अ डिफरेंस. लिख लेना कहां पे? तो एज ऑन, आउटस्टैंडिंग एज ऑन. Outstanding as on means cumulative, means total, that is cumulative, that is current year as well as previous year, that is current year plus previous year का outstanding. And outstanding for means outstanding of that year only.
Therefore, as on 31st December 13, outstanding subscription is, as on 31st December 13, outstanding subscription is 12,000. कितना है? 12,000. Then, and right, outstanding subscription for 2013 is of the 12,000. इस ईयर का कितना है? 10,000. ये वर्डिंग बहुत मैटर करेगी. ये जो वर्डिंग है ना, एज ऑन एंड फॉर, ये जो मैं डिफरेंस समझा रहा हूं ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ऑफ द 12th. बहुत मायने रखेगा, बहुत मायने रखेगा. एज ऑन मतलब सब मिला के, फॉर मतलब उसी ईयर का. ठीक है, लिख लेना. नाउ similarly, let me check one or two questions. ऐसे मैं ढूंढ रहा हूं जिसमें एंड में रहेगा. नो नॉट गिवन एस. ठीक है, अब ध्यान देना. लिखो एग्जाम्पल. एग्जाम्पल. ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड during 2016-17 is outstanding subscription as on 31st December, 31st March 16, 31st March 16 is 15,000. Outstanding subscription as on 31st March 17
17,000. Subscription received in advance for 16/17 in 15/16 let me think. Is 8,000. You have to find out the answer. मैं वीडियो ऐड करता हूं तो आपको पूरा स्क्रीन दिखेगा. You have to tell me the subscription income for the year. Take 2 minutes and find out subscription income.
हाँ गुड, किया है बच्चों ने ट्राई। अब मैं आंसर देता हूँ, ध्यान देना। ठीक है, अलग अलग आंसर है सबके, मैं चेक किया हूँ, ध्यान देना। अब सो देखो, सिंपली अगर आपको समझ में आता है तो एक डायग्राम में, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। दिस इज योर करंट ईयर, दिस इज योर करंट ईयर विच इज, या जाने दो, ये आपका करंट ईयर 2016-17 इज अ करंट ईयर, 16-17 इज करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन मीन्स क्या, इस तारीख पे कितना है, मतलब 1 अप्रैल 16, 1 अप्रैल 16 मतलब 31 मार्च 16, कितना आउटस्टैंडिंग है टोटल, 15,000। कितना आउटस्टैंडिंग था, 15,000। एंड आउटस्टैंडिंग एज ऑन इस तारीख पे, दैट इज, इस तारीख मतलब कौन सी तारीख, ऑन 31 मार्च 17, इस तारीख पे कितना आउटस्टैंडिंग है, इस तारीख पे टोटल 19,000 है। ध्यान देना, 15,000 आउटस्टैंडिंग था। इस तारीख पे ओपनिंग में 15,000 रिसेवेबल था प्रीवियस ईयर के लिए। तो इस साल में मिला कितना, 5 + 8 टोटल कितना मिला, यू रिसीव्ड 13,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। These two are the previous year. This is your current year. This is your next year. So out of 15,000, you received, out of 15,000, you received 13,000 of the previous year. So अभी भी उसका एंड में कितना बाकी है, 2,000. So as on, इस तारीख पे जो as on है ना, 31 मार्च 17 का जो as on है ना, उसमें 2,000 छुपा है। इस 19,000 में वो 2,000 भी छुपा है जो पहले का है। सो इस ईयर का कितना है, करंट ईयर का कितना है, 17। सो 19,000 में से 2,000 पहले का है, एंड इस ईयर का कितना है, 17। सो व्हाट इज योर इनकम, ध्यान देना, योर इनकम इज व्हाट यू रिसीव्ड इन द अर्लियर ईयर्स। 16-17 की इनकम क्या रहेगी, 16-17 की इनकम पहले कुछ मिला क्या, 16-17 का पहले कुछ मिला था क्या, यस सर, पहले हमें मिला था। ध्यान देना, पहले हमें मिला था 16-17 का पहले कितना मिला था, 16-17 का 15-16 में ही हमें मिला था कितना, 8,000। सो 16-17 की इनकम ढूंढ रहे हो, 16-17 का पैसा कब कब आया होगा, 16-17 का पैसा कब कब आया होगा, पहले आया होगा 8,000 आया है। इस ईयर में कितना आया है, इस ईयर में 80,000 आया है। 16-17 में 16-17 का 8,000 है, 16-17 का 16-17 में 80,000 है। सो 88 अभी तक आया है, एंड अभी तक जो नहीं आया है वो कितना है, 17,000। सो 88 + 17,000, आई थिंक 1,05,000 इज योर इनकम, 1,05,000 इज योर इनकम। चेक करो आपका आंसर क्या क्या है, देखो 1,05,000 इज इनकम। कोई लोगों ने 92,000 दिया है, कोई ने 97,000 लिखा है, ठीक है, योर इनकम इज 1,05,000 लिखो। सोल्यूशन, राइट, सोल्यूशन, solution, income and expenditure account, income credit side पे buy, subscription received during the year, subscription received during the year, received during the year, total subscription received during the year is 1 lakh। उसमें से इस ईयर का छोड़ के सब निकालो। करंट ईयर कौन सा है हमारा, करंट ईयर 16-17 का छोड़ के सब निकालो, कचरा सब निकालो, लेस रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर 14-15 का 5,000, received for another previous year
15-16, another previous year 15-16 का 8,000, received for previous year 5,000, received for previous year 8,000, total 13,000 received है out of 15,000, टोटल 13,000 रिसीव्ड है आउट ऑफ 15,000. 15,000 आने थे पहले ईयर्स के लिए बिगिनिंग में, उसमें से 13,000 आ गया. ठीक है. लेस रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का कितना है 7,000, रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर कितना है 7, 17, 18. So you will get for the current year, which is 80,000. So you received for current year in the current year. You received 16-17 का in 16-17. ये 16-17 की इनकम ढूंढ रहे हो आप. करंट ईयर 16-17. 16-17 का 16-17 में मिला 80. 16-17 का पहले कुछ मिला था क्या? पहले कुछ? हाँ सर, लिखा है उन्होंने. Subscription received advance for 16-17 in previous years 8,000. Add already received. Already received in previous years. कितना? 8,000. So अभी तक for this year, अभी तक for this year 88,000 आया है. 16-17 का पैसा अभी तक कितना है 88. पहले का भी 8,000, इस ईयर का, इस ईयर में 80,000 प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर. बच्चे कितने ऐड करते बताएं? बच्चे ऐड करते हैं 19,000, बट दे डोंट अंडरस्टैंड 19,000 इज अ क्यूमुलेटिव, एज ऑन है, एज ऑन, फॉर द ईयर नहीं है. 19,000 फॉर द ईयर नहीं है. देखो 19 में से करंट ईयर का 17,000 है, 17. Therefore your income is 1,05,000. Your income is 1,05,000. बैलेंस शीट कैसे दिखेगी? क्लोजिंग लिखो. As on 31st March 17. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 17 देखते हैं. ठीक है. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 17. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मैं ईयर लिखता हूं. प्रीवियस ईयर्स टोटल था 15,000 आउटस्टैंडिंग था. आउटस्टैंडिंग कितना था? इधर लिखा है देखो. 15,000 आउटस्टैंडिंग था बिगिनिंग में, उसमें से कितना आ गया? 13,000 आ गया, -13. सो अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है? 2,000. अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है? 2,000. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 17,000. ऐसे एज ऑन आउटस्टैंडिंग कितना है? 19. एज ऑन आउटस्टैंडिंग कितना है? 19, जो उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है. देन एडवांस सब्सक्रिप्शन, दिस इज विच ईयर? 16-17. ऑलवेज रिमेंबर 16-17 में आउटस्टैंडिंग क्या हो सकता है? 16-17 के एंड में आउटस्टैंडिंग क्या हो सकता है? खुद 16-17 है उसके पहले. 16-17 के एंड में एडवांस क्या हो सकता है? उसके आगे वाला. एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? इधर हमने माइनस किया देखो. रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर 7,000. अच्छा, किसी के क्वेश्चंस हैं? सर बट आई डिडंट अंडरस्टैंड वन थिंग. 15-16 टेकन, टोटल आउटस्टैंडिंग वाज 15,000. हाउ कैन आउटस्टैंडिंग फॉर 16-17? व्हाई नॉट? हो गया ना. ऐसे थोड़ी है मैडम. योर आउटस्टैंडिंग कैन इंक्रीज डिक्रीज, ऐसे थोड़ी है. सर बट एडवांस इज 8,000 ना, तो मैंने 8,000 ऐड किया. एडवांस इज 8,000. ये कौन से ईयर का एडवांस है भाई? 8,000 इस ईयर का पहले आया है. ये ओपनिंग लायबिलिटी में होगा. ओपनिंग लायबिलिटी से इनकम में आ गया 8,000. इनकम में आ गया. आउटस्टैंडिंग कैन बी कैन एनीथिंग. ऐसे नहीं कि सर पहले ईयर में कम था इस ईयर में ज्यादा है, ऐसे क्यों? या पहले ज्यादा था इस ईयर में कम है, ऐसे कुछ नहीं. कोई लोगों ने नहीं दिया होगा. यू अच्छा मैंने 8,000. नहीं नहीं ये वाला भाई, एक सेकंड लेट मी चेक. नेक्स्ट ईयर ये 7 है ना.
नेक्स्ट ईयर का कितना मिला है? एडवांस चेंज होगा ना, ये ओपनिंग, ये 8,000 जो ओपनिंग लायबिलिटीज है ना वो इनकम में आके बैठा, देखो यहाँ पे आके बैठा, और ये जो माइनस हुआ है वो यहाँ पे आके बैठा, पोजीशन चेंज हो जाएगी। देखो पोजीशन कैसे चेंज होगी, ध्यान देना, पोजीशन कैसे चेंज होगी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग की पोजीशन कैसे चेंज होगी, बिगिनिंग में 1 अप्रैल 16 को आउटस्टैंडिंग 15,000 था, एंड रिसीव्ड एडवांस इन एडवांस 8,000 था, इसमें से 13,000 आ गया, सो ये 2,000 बाकी है, एंड यहाँ पे टोटल 19,000 आउटस्टैंडिंग है टोटल एज ऑन। तो करंट ईयर का कितना हो गया, 17,000। ओपनिंग में 0 आउटस्टैंडिंग था, इस ईयर में वो ऐड हो गया 17,000। 13,000 रिकवर हो गया, इसमें से 2,000 बाकी है, और इस ईयर का 17,000, ठीक है। 8,000 जो ओपनिंग में था, दिस इज ट्रांसफर टू इनकम, इनकम में ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटी से निकल के इनकम में गया ये, राइट, ट्रांसफर टू इनकम। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओपनिंग लायबिलिटी इनकम में चली जाएगी, एंड इस ईयर के एंड में कितना है, नेक्स्ट ईयर का, इस ईयर के एंड में नेक्स्ट ईयर का कितना है, यहाँ पे लिखा है उन्होंने 7,000, ये आके बैठेगा। सो 8,000 विल गेट रिप्लेस्ड एंड 7,000 बन जाएगा, रिसीव्ड एडवांस एट द एंड इज 7,000, ऐसे, ठीक है। सो आज मैंने कम ऑलमोस्ट मैंने 50 मिनट से लेक्चर लिया है। मंडे को देयर विल बी लेक्चर इन द मॉर्निंग, 7:30 को मैं एग्जैक्टली स्टार्ट करूंगा, 7:30 नहीं, वी विल मेक इट 7:15, हम 7:15 को एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे 12th, फाउंडेशन विल बी इन द इवनिंग, 7:15 to 8:30 आई विल बी टेकिंग लेक्चर, 1 hour 50 मिनट्स में लेक्चर लूंगा, बट एग्जैक्टली 7:15 को स्टार्ट करूंगा। मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे एवरी वीक देयर विल बी लेक्चर, आफ्टरनून तो चलेगा और ये भी चलेगा, ठीक है, सो दैट वी कैन कवर द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। सो मंडे वी विल मीट एट 7:15, जो क्वेश्चंस है यू कैन आस्क मी, अगर किसी के क्वेश्चंस हैं आई विल टेक। देयर वाज वन क्वेश्चन, सर पहले कम आउटस्टैंडिंग था, लाइक पहले 15,000 आउटस्टैंडिंग था टोटल, इस ईयर के एंड में 19,000 आउटस्टैंडिंग है, सर ऐसे क्यों होता है? ऐसे थोड़ी है कि कम ही होना चाहिए आउटस्टैंडिंग, पहले का रिकवर हो गया, 15 में से 13 रिकवर हो गया, वो 2,000 बाकी है, बट करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा ना, पहले का रिकवर हो गया, इस ईयर का आ गया, समझ में आ रहा है वैसे। सो जिन्होंने 1,03,000 आंसर दिया था, तो पता नहीं मतलब वो उनके आंसर 92 94 कैसे आए, दिस इज द आंसर। देखो पहले हाईलाइट करो हमारा ईयर कौन सा, हमेशा ये हमारा ईयर है, तो जो रिसीव्ड है 1 लाख में से हमारी इनकम 80,000 है, पहले कुछ मिला है क्या 16-17 का, 16-17 का 8,000 मिला है, तो वो इनकम में आएगा, एंड जो इस ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है 19 में से इस ईयर का कितना है 17, ये इनकम में आएगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, नो नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ कोई लोगों ने 19,000 पूरा का पूरा लिया होगा, यही तो हमारा काम है, सब्सक्रिप्शन पे हमें एक्सपर्टाइज मिलाना है। आई विल बी टेकिंग वन, मैं और एक लेक्चर सब्सक्रिप्शन के और क्वेश्चन सॉल्व करवा के लूंगा, एंड देन हम एक्चुअल क्वेश्चन में उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे, ठीक है। हमेशा रखना उस ईयर का ढूंढना है, उस ईयर का। इनकम कैन बी रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर, वो ओपनिंग लायबिलिटी में होती है, वो ओपनिंग लायबिलिटी में रहती है, रिसीव एडवांस बोल के। इनकम कैन बी रिसीव्ड इन द करंट ईयर, वो रिसीव साइड पे रहेगी। इनकम कैन बी रिसीव्ड इन द नेक्स्ट ईयर, वो एडजस्टमेंट में रहेगा। इनकम 3 जगह पे छुपा होगा, इनकम 3 जगह पे छुपा होगा, ओपनिंग लायबिलिटी में छुपा होगा, उसको लेके आ जाओ, रिसीव साइड पे छुपा होगा, उसके लेके आ जाओ, एंड एडजस्टमेंट में छुपा होगा आउटस्टैंडिंग बोल के, उन तीनों को साथ में लेके हमें इनकम मिलती है। इनकम 3 जगह पे रहेगी, ओपनिंग लायबिलिटी में रिसीव्ड एडवांस, मतलब इस ईयर का पहले मिला वो, इस ईयर में जो मिला रिसीव साइड पे, एंड बाद में जो मिलेगा एडजस्टमेंट में रहेगा, ठीक है, गुड। सो वी कैन एंड टुडे सेशन, ठीक है, थैंक यू।